हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मार्च महीने की सारी पीआईबीज को एमसीक्यूज के ज़रिए से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है मार्च महीने की ही, तो उसमें मैंने पीआईबी की न्यूज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके किया हुआ है। बट बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि सर आपने एमसीक्यूज को ऐड नहीं किया था, तो उनकी इस बात को देखते हुए मैंने इस वीडियो को सिर्फ एमसीक्यूज पर्पज़ से ही बनाया है। तो इसमें सिर्फ आपके एमसीक्यूज ही हैं। तो अगर किसी को डिटेल में पीआईबी न्यूज़ को जानना है तो वो मेरी पिछली वीडियो को रेफर कर सकता है। और अगर किसी को सिर्फ एमसीक्यूज ही कवर करने हैं देन दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू पीपल फॉर मार्च मंथ। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट about recently launched National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited. It has, तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये बात गलत है कि जो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है यानी कि NUCFDC, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, राइट? सो सिंस कॉर्पोरेट इज देयर सो इट वुड कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन. So this is your wrong statement. Let's see what are the other statements saying about this. So it will raise capital to reach a capital base of 300 crore. बिल्कुल बात ठीक है. To support UCBs and develop a shared technology platform to improve service offerings and reduce cost. तो उसका capital base कितना है? 300 करोड़ रुपए का. It has received certificates of registration from RBI to operate as non-banking finance and self-regulatory organization. Means it will work as NBFC and SRO. It will set up a technology platform that can be shared by all UCBs, enabling them to widen their range of services at a relatively lower cost. This is right only. Okay. तो इसमें क्या आपका ऑप्शन था? ऑप्शन ए would be the right answer. Now we are coming to our second question. What this second question is saying? Which of the following statements with respect to the Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana are incorrect? Okay, it aims to install rooftop solar and provide free electricity up to 500 monthly units for 2 crore. So this is wrong actually. So this is not 500, this is actually 300. Okay, so 300 monthly units for 1 crore households. So this would be 1 crore. So this would be wrong. It is being implemented by the Ministry of New and Renewable Energy with total outlay of 75,021 crore. This is right. It will provide central financial assistance of 40% of the system cost for 2 kilowatt residential system. This is wrong. Up to 2 kilowatt के लिए 60% है, ना कि 40%. So this is also wrong. Under it, 5 villages will be developed in each district to act as a role model for the adoption of RTS in rural areas. This is also wrong actually. Household can access collateral free low interest loan product of around 7% for installation of RTS system up to 3 kilowatt. यानी 3 किलोवाट तक आप अपना लोन ले सकते हैं 7% per annum. So this is right. So what would be the wrong answers? 1, 3 and 4. So 1, 3 and 4 would be the wrong answer. Now we are coming to our third question. What is the next question is saying? Which countries are acceded to the World Trade Organization during the 30th ministerial conference held in Abu Dhabi, United Arab Emirates, taking the total number of WTO members to 166. तो लेटेस्ट मेंबर्स कौन से हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के? तो लेटेस्ट मेंबर्स आपका कोमोरोस एंड तिमोर लेस्टी. तो द आंसर वुड बी ए एंड बी एंड मींस डी वुड बी द आंसर. द न्यूएस्ट मेंबर्स ऑफ WTO आर कोमोरोस एंड तिमोर लेस्टी. Now we are coming to our next question. What this question is saying that which fund is given to self-help groups to promote the lending of money within SHGs on a rotational basis. तो कौन सा फंड दिया जाता है? वो दिया जाता है रिवॉल्विंग फंड. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. बोल रहे विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मोदी आवास घरकुल योजना विद एन एम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 10 लाख हाउसेज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 2026 तक. ओके, तो कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? वो स्टेट है आपकी महाराष्ट्र. अब बोल रहा है आपसे क्या, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटिटीज हैव रिसेंटली साइंड अ ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ अपसाइकल प्रोडक्ट्स made from textiles waste and scrap at the ongoing Bharat Tax 2024. तो किस किस ने ट्राइपार्टाइट MOU साइन किया है? ओके, तो हमें ये जानना है. तो देखो ट्राइपार्टाइट है तो यानी कि 3 इसमें एंटिटीज होंगी. तो कौन कौन सी? पहले टेक्सटाइल कमिटी तो होगी ऑब्वियसली, देन आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड देन स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज 1, 3 एंड 5.
So these textile committee, government e-marketplace, standing conference of public enterprises have signed a tripartite MOU for the promotion of upcycled products made from textiles waste and scrap on at the ongoing Bharat Tex 2024. Now the next question is, who has launched India's first indigenously developed hydrogen fuel cell Fury under Harit Nauka initiative? तो कोचिन शिपयार्ड ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखना है. Then the Ministry of Port Shipping and Waterways is implementing Green Truck Transition Program with the goal of converting at least 50% of all trucks into green trucks by 2030. So the answer would be D. Which ministry is organizing मेरा पहला वोट देश के नाम? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या लॉन्च कर रही है? मेरा पहला वोट देश के नाम. अब है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग हिज विजिट टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट तिरुवनंतपुरम, केरला. What is the total worth of these projects? Total worth of these projects is 1800 crores. Now we are coming to our next question. It is saying, according to household consumption expenditure survey conducted by NSO, rural and urban average monthly consumption expenditure per person increased to rupees 3773 and this फॉर अर्बन. सो दिस इज फॉर रूरल. ठीक है, तो हमें पता है ये रूरल का है और रूरल में आपको पता है कि 164% का इंक्रीज हुआ है. हमें ये याद रखना है कि 164% का रूरल में इंक्रीज हुआ है. बाकी अर्बन के केस में इट हैज़ इंक्रीज टू 6459 6459 और ये कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है 146%. 146% से ये बढ़ा है, 164% से ये बढ़ा, हमें याद रखना है. उसके बाद बोल रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इनइक्वालिटीज और लॉन्च्ड बाय इंडिया द 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. बिल्कुल बात ठीक है. इन डावोस स्विट्जरलैंड. बिल्कुल ठीक है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द नेटवर्क पार्टनर. दिस इज रॉन्ग. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द नेटवर्क पार्टनर. इन्वेस्ट इन इंडिया इज द इंस्टीट्यूशनल पार्टनर. इट इज एंकर्ड एंड हाउस्ड बाय सीआई सेंटर फॉर वुमेन एंड लीडरशिप. इट्स ऑब्जेक्टिव अलाइंस विद सेवरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग एसडीजी 3, 4, 5, 17. Then your next question is, Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman recently reviewed the performance of the NAFID. In which year NAFID was set up? So NAFID was set up in year 2021 under NAFID Act 2021. Which ministry is implementing a submission named Fodder and Feed Development under the National Livestock Mission to address the shortage of fodder in the country? तो फोडर और फीड डेवलपमेंट जो है वो किस स्कीम के अंदर आता है? वो आता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर. और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कौन से मिनिस्ट्री के अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग द अनुभव अवार्ड्स? तो अनुभव अवार्ड्स की जब भी बात आ रही है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन. ये वो अवार्ड होते हैं, अनुभव अवार्ड, जो रिटायर्ड पर्सनल्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस से जो आप सीख सकते हैं. तो दिस इज for which it has derived its name Anubhav. So for experienced professionals, so it would definitely come under Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. With which state has NTPC Green Energy Limited, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, signed a joint venture in agreements for the development of renewable energy parks? तो renewable energy parks की भी बात है तो महाराष्ट्र हमें याद रखना है. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च साइबर तहसील प्रोजेक्ट? तो मध्य प्रदेश हैज लॉन्च साइबर तहसील प्रोजेक्ट. उसके बाद आ रहा है द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर फिक्सिंग द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर खारिफ सीजन ऑन विच फर्टिलाइजर्स? कौन से फर्टिलाइजर्स के लिए यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फाइनलाइज की. दिस इज फॉस्फेटिक एंड पोटासिक. उसके बाद नशा मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड इन डैश बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो हमें याद रखना है कि नशा मुक्त भारत अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन डैश. सो आइडेंटिफाइड मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. तो पहले क्या था, इसको आपने लॉन्च किया था 2020 में. नशा मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च इन 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन 272 डिस्ट्रिक्ट्स. 272 डिस्ट्रिक्ट्स में था इनिशियली, पर नाउ अब इसको इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री. तो आंसर वुड बी डी. अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर द ईयर 2023-24 द खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट. तो देखिए खारिफ का कितना है? खारिफ का है 1541 समथिंग एंड राबी का है 1551 समथिंग. ओके, तो राबी का जो आपका एडवांस एस्टिमेट है इट इज ग्रेटर देन खारिफ. हमें याद रखना है 1541 1551 वुड बी द राइट आंसर. अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द State Energy Efficiency Index 2023. It is the 6th edition
of SEEI. So this is wrong, I guess. This is the 5th edition. So this is the 5th edition, so this would be wrong. It has assessed the performance of 36 states, यूनियन टेरिटरीज, 65 इंडिकेटर्स थे, ठीक है, और 7 सेक्टर्स हैं. तो ये बात तो ठीक है, तो ये गलत थी आपकी पहली बात. कह रहा है गोवा, झारखंड, तमिलनाडु हैज बीन एज द फ्रंट रनर्स. तो देखिए फ्रंट रनर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ था, आपको कैसे याद करना था फ्रंट रनर्स, आपको याद करना था आहा काका के मुंह पर तेल, काका मुंह पर तेल, ये मैंने आपको याद करवाया था. उसमें ए से था आपका आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, देन पंजाब एंड देन तेलंगाना. तो इसमें से देखिए गोवा, झारखंड, तमिलनाडु नहीं है, तो ये ऑब्वियसली फ्रंट रनर्स नहीं है. आंध्र प्रदेश इज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, नो. आंध्र प्रदेश है सेकंड टॉप परफॉर्मिंग स्टेट. तो पहले नंबर पे था आपका कर्नाटका. कर्नाटका का स्कोर है 86.5. 86.5 इज द कर्नाटका. 4 states गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड हरियाणा हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इंप्रूविंग बाय देयर स्कोर्स बाय ओवर 10 पॉइंट्स. तो 10 पॉइंट से ये इनका इंक्रीज हुआ है. तो इसको मैंने आपको कैसे याद करने के, गुम से आपको याद करना है गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र. तो इनका जो स्कोर है वो 10 पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. तो ये बात ठीक है. तो गलत आपका कौन कौन सा हो गया, 1, 3 एंड 4. 1, 3 एंड 4 वुड बी द राइट आंसर. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज सेइंग इन अ पार्टनरशिप विद विच बैंक और कंपनी हैज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च प्रोजेक्ट ओडी सर्व. तो देखिए ओडी सर्व आ रहा है, देखो सर्व आ रहा है, तो यानी कि सर्व मतलब फिनसर्व, बजाज फिनसर्व से रिलेटेड होगा. और आपको ये बात ध्यान रखनी कहाँ पर लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च होता है संबलपुर ओडिशा में. उसके बाद आपका बाइसन रिसोर्ट्स मध्य प्रदेश रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट tourist facility to obtain the first 5 Swachhta Green Leaf rating certificate of recognition. Which ministry or ministries have launched this rating system to evaluate various tourist facilities based on their adherence to the specific hygiene and sanitation standard? तो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज थी जिन्होंने ये ग्रीन लीफ सिस्टम लॉन्च किया है? पहला आपका था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होगा और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा. तो यानी कि BNC वुड बी द राइट आंसर. अब हम बात करते हैं विच when Ministry of Mines has launched SNT Prism. So what is SNT? SNT is Science and Technology. तो इससे आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि SNT है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो रिलेटेड हो, पर नहीं, दिस इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. हमें ये बात याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च SNT Prism प्रोग्राम टू फंड रिसर्च and innovation startups and MSME working in the field of mining and mineral sector to bridge the gap between research and development and commercialization. So this SNT Prism was launched in 2023. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द भारत पशुधन. तो भारत पशुधन के बारे में बात कर रहा है. इट इज अ डिजिटल, इनकरेक्ट बताना है, देखो आपको बोलना है इनकरेक्ट बताना है कि इट इज अ डिजिटल डाटाबेस फॉर लाइफ स्टॉक एनिमल्स एंड कंट्री. ये बात बिल्कुल ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन. ये बात बिल्कुल ठीक है. इट यूटिलाइजेज अ यूनिक 15 डिजिट टैग आईडी. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि भारत पशुधन में कितने डिजिट का टैग आईडी अब लोग यूज करेंगे, वो होगी 12 डिजिट टैग आईडी. तो दिस विल बी द wrong and the answer for this is C. India Tax project, that is innovative business practices and economic models in the textile value chain in the India, was launched at the Bharat Tax 2024 by dash for duration of dash. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है. आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए जब टेक्सटाइल्स वगैरह से चीज़ बात आएगी तो ये सब किस पर प्रभाव करते हैं, एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालते हैं. तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका ये जो हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. So this was launched at the Bharat Tax 2024 by UNEP for the duration of 4 years. तो 4 years के लिए इसको लॉन्च किया गया भारत टैक्स को. भारत टैक्स, इसको याद रखना, भारत टैक्स is launched by UNEP and for the duration of 4 years. Okay. Now we are coming to our next question. Which ministry has made the electronic cash ledger as the mode of payment of import duties for the goods imported through international courier terminals? तो देखो जब इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री इससे लिंक करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इससे डील करेगी. तो दिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज मेड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज मैंडेटरी. ठीक है. तो फ्रॉम एज अ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज फॉर गुड्स इंपोर्टेड थ्रू इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स फ्रॉम 1 मार्च 2024 से इनको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करना है. अब बोल रहे व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ESTDS टग डेवलप बाय द कोचिन शिपयार्ड. तो देखिए ESTDS टग किसके द्वारा डेवलप किया गया, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा डेवलप किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. तो उसका नाम है ओशन ग्रेस. ठीक है. और ESTDS की फॉर्म क्या है, अप्रूव्ड स्टैंडर्ड
tug design and specifications. Approved standard tug design and specifications. The Union Ministry of Coal has recently approved the coal logistic plan, proposing a strategic shift towards a railway-based system in first-mile connectivity projects, aiming for dash reduction in rail logistic costs and an annual cost saving of dash. तो बोल रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बचत के लिए कितना अपना रिडक्शन किया है रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए, और उससे उनकी कितनी सेविंग हुई है, ये आपसे पूछा गया है. ओके, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने 14% रिडक्शन किया है रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट में, और जिससे उनकी सेविंग कितनी हो गई, 21,000 करोड़. 14% रिडक्शन से उनकी सेविंग कितनी हो गई है, 21,000 करोड़. तो आंसर वुड बी सी. अब देखिए आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च आदिति स्कीम. तो आदिति स्कीम के बारे में है. ओके, ओके, इट एम्स टू डेवलप अबाउट 15 डीप टेक critical and strategic technologies in the proposed time frame. This is not 15, it is actually 30. तो 30 deep critical and strategic technologies develop करेंगे under आदिति. Okay, it is being implemented under IDEX framework of Ministry of Defense. बिल्कुल बात ठीक है. Under it technology watch tool, it will be developed to bridge the gap between the expectation and requirement of the armed forces. बिल्कुल बात ठीक है. इट हैज़ आउटले ऑफ 1650 करोड़ फॉर द टेन्योर. ये तो नहीं, 1650 तो नहीं है, ये तो बात बिल्कुल गलत है. इट विल प्रोवाइड एलिजिबल स्टार्टअप्स टू ग्रांट अप टू 90% ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट विद अ कैप ऑफ 50 करोड़. दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. दिस इज नॉट 90 and 50. आई थिंक दिस इज 50%. 50% ऑफ द प्रोडक्ट विद अ बजट कैप ऑफ 25 करोड़. 50% अप टू 25 करोड़. तो ये है इसमें. So the right answer in this case would be B. 1, 4 and 5. 1, 4 and 5 is wrong. Okay. Now what is the name of the Digital Gateway Initiative of Warehousing Development and Regulatory Authority launched recently to facilitate farmers in obtaining post-harvest loans from banks against their stocks stored in the WDRA. What is WDRA? It's Warehousing Development and Regulatory Authority. तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है ई किसान उपज निधि. ठीक है, ई किसान उपज निधि इज द नेम ऑफ द डिजिटल गेटवे इनिशिएटिव ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च रिसेंटली टू फैसिलिटेट फार्मर्स इन ऑब्टेनिंग पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स. तो पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स के लिए क्या दिया गया है? ई किसान उपज निधि. विच कंपनी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स इन स्टेनलेस स्टील एट हिसार प्लांट. ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर? तो वो है जिंदल स्टेनलेस स्टील. What is the name of the facility recently launched on Sanchar Sathi portal by the Ministry of Communications to empower citizens to proactively report suspected fraud communications? तो फ्रॉड कम्युनिकेशंस के लिए क्या उन्होंने फैसिलिटी लॉन्च की है? चक्षु. जहां भी फ्रॉड से रिलेटेड कुछ आए, चक्षु लगा दो. India is endowed with dash largest geological reserves of coal and is dash largest consumer of coal. तो हमें एक बात जानना ज़रूरी है कि हमारे पास दुनिया के 5वें लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का, और बल्कि हम जो कंज्यूमर हैं वो हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं. तो 5th and 2nd मीन्स बी वुड बी द आंसर. नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स नोन एज सोशल डिफेंस फेलोशिप. सोशल डिफेंस फेलोशिप की बात कर रहा है. देखिए, तो सोशल डिफेंस फेलोशिप की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किसके साथ कोलैब किया है? द नज इंस्टीट्यूट के साथ. आप बेंगलोर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. ऑब्वियसली इसमें सोचने वाली कुछ बात ही नहीं थी. अब बोल रहा है कि विद विच साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैज आर्टिफिशियल लिम्स अलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साइन इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोलैबोरेशन इन द डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी. तो किसके साथ अलिम्को ने ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन किया है? वो आपका CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट इंडिया जन औषधि स्कीम. तो कौन सी वो कंट्री जिसने सबसे पहले जन औषधि स्कीम को अडॉप्ट किया? वो आपकी मॉरिशियस. अब हम बात करते हैं विच कंपनी बिकेम फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड विद द PLI ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स. तो किसको PLI ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट मिला है? वो है आपका ओला इलेक्ट्रिक. अब बात करते हैं विच मिनिस्ट्री हैज साइंड अ ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद BEML, भेल एंड मिश्र धातु निगम लिमिटेड फॉर द इंडिजिनियस डेवलपमेंट
ऑफ एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर इंजन फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। तो इसमें कौन सा होगा? देखो, जब ये बोल रहा है कि एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर इंजन इन हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस, बिल्कुल आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सोचना चाहिए कि BML, भेल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर क्या किया है? एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर इंजन, इसके लिए एक ट्राइपार्टाइट MOU साइन किया है। अब बोल रहा है क्या? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिंग फीचर्स ऑफ रिसेंटली लॉन्च नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म के बारे में बोल रहा है, तो आपको क्या बताना है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 7500 क्यूरेटेड बेस्ट प्रैक्टिस, 5000 पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, 900 प्लस डाटा सेट, 1400 डाटा प्रोफाइल, 350 नीति आयोग पब्लिकेशन था। बिल्कुल ठीक सा लग रहा है। इट इज available in 10 major Indian languages and 2 foreign languages. This is not actually. It's available in 12 in Indian languages. Okay, so this is wrong. So now it is saying that it is tailored with digital training modules for officials at various levels. तो बिल्कुल बात ठीक है। अब बोला it provides specialized guidance through partnership with leading institution to address specific challenges. Okay, it leverages data from ONDC for comprehensive and actionable insights, fostering data-driven decision making. So it does not leverage data from ONDC. So this is wrong. So the right answer would be 1, 3 and 4. So answer would be A. With which organization has Ministry of Jal Shakti recently signed a memorandum of agreement for establishment of an international center of excellence for dams? तो देखिए, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स अंडर ड्रिप, विच इज अंडर ड्रिप फेज 2 एंड फेज 3। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किसके साथ मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन किया है? वो है आपका IISc बेंगलोर। अब बोल रहा है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ द टारगेट सब्सिडी। कितना? अब उज्ज्वला योजना की बात कर रहा है, तो टारगेट सब्सिडी उसमें कितनी है? 300 रुपये की टारगेट सब्सिडी है पर 14.2 kg सिलेंडर फॉर अप टू कितनी रिफिल्स? 12 रिफिल्स पर ईयर। ओके, अब वो क्या बोल रहा है? देखो, आइडेंटिफाई करंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली अप्रूव कॉम्प्रहेंसिव नेशनल लेवल इंडिया AI मिशन। तो इट हैज़ अ बजटरी आउटले ऑफ 10,370 लमसम 10,372 करोड़। So this is right actually. It will be implemented by India AI Independent Business Division under Digital India Corporation. बिल्कुल बात ठीक है। Its India AI database data sets platform component will develop AI marketplace to offer AI as a service and pre-trained models to AI innovator. It will develop AI marketplace. So it doesn't feel good to me. So we'll keep it as it is. Let's see other options. Its India AI compute capacity components will develop AI compute infrastructure of 10,000 or more GPUs. So बिल्कुल बात ये ठीक है। Its India AI application development initiative component will focus on developing impactful AI solutions with potential for catalyzing large scale socio-economic transformation. बिल्कुल बात ठीक है। तो this is AI for socio-economic transformation. Okay. So this is, it will not develop AI marketplace to offer AI as a service. So it will not. So this is completely wrong. So it will not develop AI marketplace to offer AI as a service. No. What it will do? It will use AI for the socio-economic transformation. Socio-economic transformation. Now we are coming to our next question. It is saying which of the following statements are incorrect about recently approved उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, विच इज उन्नति। उन्नति की स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो हमें इसमें एक ये बात याद रखनी है कि ऑल्दो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड है, पर जो इसकी मिनिस्ट्री है, हम अगर इसको सोचें, अगर नॉर्मल लॉजिक से सोचें, हम लोग सोचेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन आना चाहिए, पर नहीं। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें जो एक्सेप्शन है हमें वो याद रखने हैं कि जो उन्नति का जो मिनिस्ट्री है वो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 10,037 करोड़। दिस इज राइट। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 7 years along with 15 years for committed liabilities. This, it doesn't seem good to me. It will be implemented by the Ministry of Development of Northeast. No, it will be implemented by Ministry of Commerce and Industry. हम एक बात ये ध्यान रखें, it is implemented Ministry of Commerce and Industry. All new industrial units and expanding units are eligible to avail loan under this scheme. Okay, maximum eligible benefits to one unit from all component is 250 crores. It is not centrally sponsored scheme. It is a central sector scheme. Central sector scheme, total cost of this. So this is also wrong actually.
So maximum eligible benefit to one unit it would be right. So your correct answer in that case would be 1, 2, and 3. So it would come under D. It is not centrally sponsored. It is central sector scheme with total cost of 10,037. तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, उन्नति is a central sector scheme, not central sponsored scheme. Okay. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. टू इंट्रोड्यूस क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज द गवर्नमेंट हैज लॉन्च several clean coal initiatives including the coal gasification mission. It aims to gasify how much of coal by dash through surface coal lignite gasification projects. तो कितना कितना गैसिफाई करना है? 100 मिलियन हमें कोल गैसिफाई करना है, 100 मिलियन टन हमें गैसिफाई करना है बाय 2030 तक 100 मिलियन टन हमें गैसिफाई कर देना है. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च थ्री डाटा सबमिशन पोर्टल्स. तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? इंडियन न्यूक्लियोटाइड डाटा आर्चाइव, इंडियन क्रॉप फिनोम डाटाबेस पोर्टल, इंडियन मेटाबोलोम डाटा आर्चाइव पोर्टल. तो इससे देखो आप, ये साइंटिफिक बातें लग रही हैं, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इसमें इसको लॉन्च करेगी. अब देखिए, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद विच स्टेट एंड यूएनडीपी रिसेंटली ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो नीति आयोग ने किस स्टेट के साथ और यूएनडीपी के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किया है? वो है राजस्थान. तो नीति आयोग, यूएनडीपी एंड राजस्थान, they have organized the national conference on accelerating sustainable development goals which we'll have to achieve by 2030. Where has India's first supercritical thermal power plant, North Karanpura super thermal power plant, which is of 600 megawatt, equipped with air cooled condenser technology, has been inaugurated recently. तो वो झारखंड में लॉन्च हुआ है, तो झारखंड में हो गया. Which ministry has organized 4th edition of सरस मेला in नोएडा? तो सरस मेला कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सरस मेला आपका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने. Which country has been bestowed with the prestigious Measles and Rubella Champion Award by the Measles and Rubella Partnership? तो किस इंडिया को मिला है मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड? इंडिया को मिला है. Consider the following statement with respect to Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2024 campaign and identify the correct statement. The theme for 2024 campaign is source sustainability for drinking water. This is wrong. The theme जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो है नारी शक्ति से जल शक्ति. नारी शक्ति से जल शक्ति. Okay. The campaign will be implemented from 9 May 2024 to 30th November 2020. बिल्कुल बात ठीक है. The campaign has been launched बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ये भी बात ठीक लग रही है मुझे. तो यानी कि जो आप क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. Which is the following with respect to this and identify the correct statements. Okay. तो ये जहाँ तक है ये गलत है आपका. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो है, पर कौन सी मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है ये हमें एक बार देखना पड़ेगा. मुझे लग रहा है सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा है कि ये, मतलब मुझे नहीं लगता कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इसमें. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा. सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इसमें. ओके. नाउ एज पर द डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिगार्डिंग अचीवमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, over 1 crore tribals have already been screened under sickle cell anemia elimination mission. What is the target of screening for the next 3 years? तो 3 years के लिए हमारा टारगेट कितना है? 7 करोड़. उसमें बात करते हैं हाउ मच फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू स्टेट्स यूटीज फॉर द फिजिकल अपग्रेडेशन ऑफ ऑल 613 DIETs टू डेवलप देम एज डाइट ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 years. तो कितना दे रहा है? 9,000 करोड़. 9,000 करोड़ फॉर 613 डाइट्स. Baran is the only district which is resided by Saharia PVTG tribe with population of itna. Baran is one of the districts which has shown substantial progress in all intervention under PM Janman. To which state Baran district belongs? तो Baran कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? Baran कौन सी स्टेट में आता है? Baran is in राजस्थान. पोषण पखवाड़ा 2024 is being organized from 9th March till
23 मार्च 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थीम्स ऑफ दिस पखवाड़ा। तो इसका थीम है पोषण भी पढ़ाई भी, ओके। ट्राइबल ट्रेडिशनल रीजनल लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस फोकस ऑन सेंसिटाइजेशन और ऑन न्यूट्रिशन, ओके। देन आपका वैक्सीनेशन, ये तो कोई मतलब नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ लेबर रूम, ये भी कोई मतलब नहीं है। हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, तो प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस ये बिल्कुल है। तो पोषण भी पढ़ाई भी, ट्राइबल ट्रेडिशनल रीजनल लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस फोकस ऑन सेंसिटाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, health of pregnant women, infant and young child feeding practices. So these are correct. So 1, 2 and 5 would be the correct answer. The Sela tunnel project constructed at a cost of about कितना 825 करोड़ रुपए की कॉस्ट है, is an engineering marvel. It will provide all weather connectivity. तो कहाँ पर है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश में है। हमें ये याद रखना है कि सेला टनल विच इज बिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ 825 करोड़ इज इन अरुणाचल प्रदेश। In which northeastern state PM has launched the Unity Mall at Neelakuti village? तो it is मणिपुर, मणिपुर में आपका इन्होंने लॉन्च किया है यूनिटी ऑफ मॉल। In a major boost to women empowerment in Chhattisgarh, Prime Minister has disbursed the first installment under the Scheme X. The scheme has been launched in Chhattisgarh to provide financial assistance of rupees 1000 per month to eligible married women. तो हर एलिजिबल मैरिड वुमेन के लिए छत्तीसगढ़ में एक स्कीम चलाई गई है। तो वो कौन सी स्कीम है? वो है महतारी वंदना योजना। हमें याद रखना है महतारी वंदना योजना, मातृ वंदना योजना नहीं है, इट इज महतारी वंदना योजना। By Feb 2024, coal PSUs have already surpassed the fiscal year 2024 capex target by making record capex of 22,448 crore, that is 106.74% of the annual target. तो 22,448 करोड़ में इन्होंने कैपेक्स टारगेट अचीव किया है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपका इनिशियल टारगेट कितना था। इनिशियल टारगेट आपका कितना था? वो था आपका 21,030 करोड़, 21,030 करोड़ था और उन्होंने अचीव कितना किया है? 22,448 करोड़। 21,030 से 22,448 करोड़ और अचीवमेंट कितना है? 106.74% इज द अचीवमेंट बाय कोल PSUs. A memorandum of agreement has been signed between CAPFIMS and AIIMS, New Delhi, to run Central Armed Public Forces Institute of Medical Sciences, CAPFIMS, as a campus of AIIMS. How much fund has been approved by the cabinet for this purpose? तो इसके लिए उन्हें कितना पर्पस इन्हें दिया गया है? वो है आपका 2207.5 करोड़, 2207.5 करोड़ is the memorandum of agreement between CAPFIMS and AIIMS, 2207.5. How much investment has been committed by the trade and economic partnership signed between India and European Free Trade Association, which is known as EFTA? Okay, EFTA में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं आपकी? EFTA में आपकी आ जाती है स्विट्जरलैंड, उसके बाद आपकी आ जाती है आपका नॉर्वे, फिर आपका आ जाती है आइसलैंड, देन आपका लाइक्सटेनस्टीन, ओके। तो आपकी 4 कंट्रीज ही आ गई और कितने इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? $100 billion. In which state rupees 172 crore has been allocated by the Ministry of Minority Affairs for the development of multidisciplinary sports complex? तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन सेंटर के लिए कहाँ पर 172 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं? वो है आपका नागालैंड। With which state government NLC India Limited has signed a memorandum of understanding for the formation of joint ventures so as to set up 125 megawatt lignite based power plant and 1000 megawatt solar power plant? तो कहाँ पर होगा? सोचो, सोलर पावर प्लांट की बात कर रहा है, 125 मेगावाट लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट की बात कर रहा है राजस्थान में। बिना सोचे समझे लगा दो आप, बिल्कुल ठीक है। तो एनएलसी के साथ ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट विद एनएलसी के साथ राजस्थान ने साइन किया है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग फॉर द जॉइंट वेंचर टू सेट अप 125 मेगावाट लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट एंड 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। एनएलसी के साथ किसने? राजस्थान ने। Which ministry has signed a memorandum of understanding with sign-able communications to enhance communication and accessibility for visually and hearing impaired दिव्यांगजन? तो ऑब्वियसली जब इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, साइन-एबल कम्युनिकेशन है और आपका दिव्यांगजन आ गया तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट होगा। अब वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डैश फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो उन्होंने किसके साथ उनके स्किल डेवलपमेंट की बात की? उन्होंने बात की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया,
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के साथ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर स्किल डेवलपमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया। PM Modi inaugurated Barauni-Guwahati pipeline under PM Urja Ganga Yojana to the nation. This pipeline will benefit people from more than 30 districts in the whole state. तो ये आपको बताना है कि भैया ये जो अब बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन जा रहा है, तो वैसे देखो गुवाहाटी है तो आसाम तो हो गई होगा, ठीक है जी। बरौनी में अब जा रहा है तो यानी कि बिहार वेस्ट बंगाल एंड असम इज द राइट आंसर। बिहार वेस्ट बंगाल एंड असम। Which ministry has organized Sangam Digital Twin Initiative at IIIT Bangalore in collaboration with the Telecommunication Center of Excellence? ओके, देखिए टेलीकम्युनिकेशंस की बात आ रही है तो ऑब्वियसली इसमें मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन तो हो ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी द आंसर। अब बोला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज लॉन्च्ड एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेंटर? To provide farmers information about the reality in the farm and find out the real challenges of the agriculture sector. Okay. To provide farmers information about the weather and climate change. To provide farmers information about crop protection techniques. To provide farmers information about soil health, about crop insurance. To provide farmers information about the reality in the farm and find out the real challenges of the agriculture sector. दिए होगा I guess. A would be the right answer. Okay. So Ministry of Agriculture has launched Agriculture Integrated Command and Control Center to provide farmers the information about reality in the farm and find out the real challenges of the agriculture sector. तो Agriculture Integrated Command and Control Center हमें याद रखना है। Ministry of Chemical and Fertilizers has launched revamped pharmaceuticals technology upgradation assistance scheme. Under the scheme, the eligibility has been expanded beyond micro, small, and medium enterprises to include any pharmaceutical manufacturing unit with a turnover of less than 500 crores that require technology and quality upgradation. Consider the following statements with respect to 12th edition of integrated rating and discount released by the Ministry of Power and identify the correct statements. The nodal agency to conduct the rating exercise was IREDA. तो this is wrong. तो ये IREDA क्यों करेगी? खुद सोचो, IREDA क्यों करेगी? This is wrong. अब बोला था number of discoms in the A+ category have gone up from 12 in the 10th edition and 14 in the 12th edition. तो बिल्कुल ठीक है। A+ कैटेगरी में आपकी कितनी डिस्कॉम्स है? 14 है। Among power departments of 11 states, electricity department of New Delhi has emerged on top. No, Thrissur Power Corporation has emerged on top, which is in Kerala. Okay, this is also wrong. 14 discoms has been rated as A+. So okay, this is 2 and 4 would be the right answers. What they are asking. Consider for instance with respect to this correct statement, so would be 2 and 4. Now the next question, in order to encourage the local production of aspirational blocks, Niti Aayog has established a dedicated window for aspirational blocks program under the brand name Kaunsa? Akanksha on Government e-marketplace portal. With what outlay Ministry of Heavy Industries has launched electric mobility promotion scheme? तो electric mobility promotion scheme का कितना है outlay? वो आपको याद रखना है 500 करोड़। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम का जो आउटले है वो आपका 500 करोड़ है। विद विच इंटरनेशनल बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है साइंड $181 मिलियन एग्रीमेंट? तो अब सोचने वाली बात नहीं है, ये आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टुवर्ड्स अर्बन लिवेबिलिटी एंड मोबिलिटी इन द पेरी अर्बन एरियाज ऑफ द अहमदाबाद सिटी इन गुजरात। तो गुजरात के लिए भारत सरकार ने और किसके साथ $181 मिलियन का साझा किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। अभी आजकल जितने भी अभी वो हो रहे हैं ना एग्रीमेंट, ये सब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ही हो रहे हैं। अब देखो, नेम द पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कौन सा है? PM सूरज। तो PM सूरज इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक क्विज डाला था, उसमें मैंने लिखा था PM सूरज इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने बोला था कि इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बट दिस इज रॉन्ग। PM सूरज इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और सूरज की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। जब सामाजिक उत्थान की बात आए तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अपने आप आ जाता है। With which country India signed a protocol for establishment of JETCO? तो JETCO के लिए कौन है? डोमिनिकन रिपब्लिक, कैपिटल इज सेंट डोमिंगो। In which of the following agriculture institute Ministry of Science and Technology has inaugurated the first of its kind National Speed Breeding Crop Facility?
तो नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी कौन से इंस्टीट्यूट में लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हमें ये बताना है। तो कौन सी है वो है आपका नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। अंडर विच अभियान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इनॉग्रेटेड कमेंसमेंट ऑफ पीएनजी फैसिलिटी इन 41 विलेजेस एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 178 विलेजेस विद एन आउटले ऑफ 383 करोड़। दिस इज दिल्ली ग्रामोदय अभियान, दिल्ली ग्रामोदय अभियान विद एन आउटले ऑफ 383 करोड़। मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पीएनजी फैसिलिटीज 41 विलेजेस में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन 178 विलेजेस में। Which ministry has recently signed a memorandum of understanding with the Indian Institute of Technology, Delhi, centered around the Bhuprahari project to leverage ground and space-based geospatial technology and AI to monitor and manage assets under मनरेगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ आईआईटी दिल्ली ने करा है? ठीक है, तो मनरेगा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सोचने वाली बात नहीं थी कुछ भी। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी, एंड द फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया has recently launched 2 memorandum understanding to launch the credit assistance program for Jan Aushadhi Kendra under it project term loan assistance। तो कितना असिस्टेंस उनको मिलेगा? अप टू 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड वर्क कैपिटल असिस्टेंस कितना? तो टर्म लोन उनको मिलेगा 4 लाख और वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस उनको मिलेगा 2 लाख। तो 4 लाख और 2 लाख आपको ऐसे करके याद रखना है। 4 लाख अप टू 80%, 2 लाख फॉर द वर्किंग कैपिटल। With which country has the Union Cabinet recently approved intergovernmental framework signed in February 2024 for the empowerment and operation of the IMEC, which is India Middle East Europe Economic Corridor? With which country has Union Cabinet recently approved the intergovernmental framework agreement signed in February 2024 for the empowerment and operation of the Indian Middle East? तो किसके साथ ये हुआ है? इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है, ध्यान रखना है, इंडिया यूएई के बीच में हुआ है आईमैक का। What is the name of the platform launched by the Ministry of Information and Broadcasting to provide news stories in all major Indian languages across 50 countries? तो PM Shabd is the platform. Where has PM recently laid the foundation stone of the petrochemical complex of Petronet LNG, including ethane and propane handling facility worth over rupees 20,600 करोड़? तो ये कहाँ पर करेंगे? ऑब्वियसली मुझे लग रहा है जहाँ तक गुजरात है आंसर, क्योंकि सब ये जो जितने भी डेवलपमेंट वाले काम हो रहे हैं गुजरात में आप लगा दिया करो। इथेन प्रोपेन हैंडलिंग में वर्थ ओवर 20,600 करोड़। विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिसेंटली साइंड ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रोलिफरेट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो किस किस के साथ यूसॉफ ने करा है? तो ऑब्वियसली आपको प्रसार भारती है और ओएनडीसी है। तो 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर। विद विच country has India recently signed a memorandum of understanding to enhance workforce skills, promote employment, address skills gap and foster international cooperation? तो इंडिया ने किसके साथ इसकी क्या एनहेंस वर्कफोर्स स्किल्स के लिए इजिप्ट के साथ किया है, और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्ट की कैपिटल कायरो। What is the name of the recently launched portal to serve as a single interface between applicants in various fellowship schemes of the Department of Biotechnology? तो what is the name of the recently launched portal? वो कौन सा पोर्टल है which serves as a single interface between applicants in various fellowship programs of the Department of Biotechnology? तो कौन से? कॉमन फेलोशिप पोर्टल। Which ministry has constituted a committee on digital competition law? तो डिजिटल कंपटीशन लॉ के बारे में अगर बात कर रहा है to examine the need for a separate law on competition digital market of the Ministry of Corporate Affairs would be the right answer. With which IIT has the Ministry of Heavy Industries recently signed a memorandum of understanding to foster collaboration to establish a center of excellence and an industry accelerator to drive innovation in the automotive and electric vehicle sectors? Okay. मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इंडस्ट्री एक्सेलरेटर? तो जहाँ तक मेरे ख्याल आ रहा है, आई थिंक दिस इज आईआईटी रुड़की के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इंडस्ट्री एक्सेलरेटर टू ड्राइव इनोवेशन एंड ऑटोमोटिव इन द ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर।
Which of the following statements are incorrect about the gender inequality index? It has been released by the World Bank. No, no, no. This is released by United Nations Development Program. This is wrong. Denmark has topped this edition. बिल्कुल बात ठीक है. जहां तक इसका स्कोर की बात है, स्कोर ऑफ डेनमार्क is 0,009. India has been ranked at 120th rank out of this with a score. तो score ठीक है. This score is 0.437, but the rank is not 120. It is 108. So this is wrong. India has shown significant jump of 14 ranks. तो 14 rank से jump किया है as compared to this. तो this is right actually. ठीक है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है. पहले उसकी रैंक कितनी थी? पहले उसकी रैंक थी 122. 122 से 108 में गया, तो ऑब्वियसली 14 का जंप है. नेपाल एंड बांग्लादेश हैव परफॉर्म बेटर देन इंडिया इन. नो नो नो, ये नहीं है. नेपाल बांग्लादेश नहीं है मेरे हिसाब से. भूटान है. भूटान ने और मालदीव्स ने. भूटान मालदीव्स हैज परफॉर्म्ड बेटर देन एज कंपेयर टू इंडिया. तो नॉट नेपाल एंड बांग्लादेश. ठीक है, तो भूटान मालदीव्स आपको याद रखना है. तो द करेक्ट आंसर इज इनकरेक्ट आपसे पूछा गया, तो 2, 3 एंड 5. 2, 3 एंड 5 वुड बी द राइट आंसर. Ministry of Road Transport and Highways has launched pilot program to provide cashless treatment to the victims of road accidents. तो इसमें क्या है? इसमें आपको बोल रहा है कि आप 7 दिन तक उनको फ्री ट्रीटमेंट दोगे. जिन लोगों की एक्सीडेंट में कुछ चोट वोट लग जाती है, उनको आप 7 दिन तक आप पूरी खिदमत करोगे उनकी. और उनका जो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा वो कितने तक होगा? 1.5 लाख रुपये तक का. 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रीटमेंट होगा. What is the name of the revolutionary automotive fuel launched, which is a alternative to gasoline? It is ethanol 100. Identify incorrect statement about scheme for strengthening of pharmaceutical industry. It is implemented by Ministry of Chemical and Fertilizer. बिल्कुल बात ठीक है. It has a tenure 5 years from fiscal year 2022 से 26. तो यार ये भी ठीक लग रहा है. Assistance to pharmaceutical industry for common facilities component provides 50% assistance. 50% assistance up to 50 crore. This is somewhat, I think this is not right. So we'll have to check it up, but what is the right answer for this? But this 50% 50 crore तो नहीं है. Its component pharmaceuticals and medical devices promotion and development scheme has tenure 5 years. बिल्कुल बात ठीक है. API CF component also has a tenure of 5 years. ये भी बात ठीक है. तो I think C would be the answer. C would be the answer. With which portal has Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying successfully integrated the Kisan Credit Card Fisheries scheme for revolutionizing the access to. तो KCC Fisheries scheme को किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया? जनसमर्थ पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है. Which ministry has signed a non-financial memorandum of understanding? Non-financial किस मिनिस्ट्री ने किया है with BFIL to support the livelihood intervention of day NRLM by syncing their activities in livestock and fisheries development? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट has signed non-financial MOU with BFIL to support the livelihood intervention of day NRLM by syncing their activities in livestock and fisheries development. बिल्कुल. Which of the following statements are incorrect? तो incorrect पूछा गया, हमें बात ध्यान रखनी. About e-vehicle policy, under it minimum investment required is 1150. This is wrong. 1150 नहीं है, ये 4150 करोड़ है. इसमें लगभग 5 लमसम इसको देखा जाए तो $500 million का ये होता है. $500 million इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है. 3 years इज द टाइमलाइन फॉर सेटिंग अप. बिल्कुल बात ठीक है. बिल्कुल 3 years के अंदर टाइमलाइन है. लोकलाइजेशन लेवल ऑफ 50% मस्ट बी अचीव बाय 3 year फॉर दिस. नहीं नहीं नहीं, लोकलाइजेशन है 25% की बाय 3rd year, और फिर है 25 फिर उसके बाद 50% बाय 5th year, 25% बाय 3rd year एंड देन 50% बाय 5th year, ऐसे करके. तो ये भी गलत हो गया. Customs duty of 15% will be applicable on the vehicle of minimum $35,000 and above for a total period of 5 years. बिल्कुल बात ठीक लग रही है. There is no requirement of bank guarantee. बिल्कुल बैंक गारंटी की तो जरूरत है ही है. तो ये बात गलत होगी. 1, 3 and 5 would be the wrong answer. Which ministry has approved for the proposal of establishment of the Center for Advanced Studies in Buddhist Studies at the university at an esteemed
estimated cost of approx 35 crores under its scheme Pradhan Jan Vikas Karyakram. Pradhan Jan Vikas Karyakram of Buddhist Development Plan is under the aegis of the Ministry of Minority Affairs. With which country has India recently signed memorandum of understanding in law and dispute resolution? None other than Singapore. With which डेवलपमेंट बैंक हैज इंडिया रिसेंटली, देखो मैंने जितना बोला है सब एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ हो रहा है, पहले टिक कर दो फिर पढ़ते हैं. With which development bank has Asian Development Bank has India recently signed $23 million agreement to enhance access to quality fintech education, research and innovation at the Gujarat International which is GIFT City. तो GIFT City के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $23 मिलियन का एग्रीमेंट है, $23 मिलियन एग्रीमेंट. With 8% share in the global fish production, India is dash. तो इंडिया कौन से नंबर का फिश प्रोड्यूसर है? इंडिया 3rd नंबर का फिश प्रोड्यूसर है. इंडिया दूसरे नंबर पर आपका एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है और इंडिया 4th लार्जेस्ट आपका सी फूड एक्सपोर्टर है. तो 3rd लार्जेस्ट वो क्या है? फिश प्रोड्यूसर. 2nd लार्जेस्ट वो है एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर और 4th लार्जेस्ट वो है सी फूड एक्सपोर्टर. फिर है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ऑयल palm processing mill has been recently inaugurated under NMUOP. तो नन अदर अरुणाचल प्रदेश में ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल इनॉग्रेट की गई है. विच मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ स्कीम ऑफ 2.56 है ग्रामीण डाक सेवक. देखिए जब पोस्ट की बात आ रही है, ग्रामीण डाक सेवक की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी देयर. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है? एवरी ग्रामीण डाक सेवक विल गेट 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 12, 24, 36 ईयर्स ऑफ सर्विसिंग अमाउंटिंग टू 4,320, 5,520 एंड 7200 पर एनम पर रेस्पेक्टिवली. ओके. The Ministry of Port Shipping and Waterways has been recently announced as a major investment of more than 645 crores. तो 645 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने सागरमाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है for 10 projects. These projects will be implemented with 100% financial assistance from the central government to enhance terminal and riverine infrastructure along river Brahmaputra. तो ब्रह्मपुत्र के along इन्हें ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है. इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में पूछ रहा है? तो स्टेट आपकी नन अदर देन आसाम है. हमें ध्यान रखना है कि आसाम में 645 करोड़ रुपए इन द फॉर्म ऑफ 10 वाटरवे प्रोजेक्ट्स अंदर सागरमाला, ठीक है, अलॉन्ग रिवर ब्रह्मपुत्र फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ टर्मिनल्स एंड रिवराइन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आसाम में हो रहा है, ध्यान रखना, आसाम इंपॉर्टेंट है. What is the name of the portal recently launched by the National Internet Exchange of India, Ministry of Electronics Information and Technology, based on the concept of universal acceptance for digital inclusion across the nation? तो कौन सा है वो? उसका नाम क्या है? भाषा नेट पोर्टल. भाषा नेट पोर्टल is the name of the portal recently launched by the NIXI. India recently has convened the 41st steering committee meeting of the International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE) in New Delhi. IPHE is an intergovernmental cooperative initiative which was founded in 2003, consisting of 24 countries including India. तो IPHE में कितनी कंट्रीज हैं? 24 कंट्रीज हैं. कब IPHE फाउंड हुआ था? वो हुआ था 2003 में. हमें ध्यान रखना है 2003 में फाउंड हुआ था. उसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं? 24 कंट्रीज हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंश्योरेंस ई मार्केट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द IRDAI? तो IRDAI ने कौन सा मार्केट अभी रिसेंटली अप्रूव किया है? दिस इज बीमा सुगम. India has been recently elected as the co-chair of the Digital Innovation Board formed under the aegis of the Innovation Entrepreneurship Alliance for Digital Development. This alliance is a part of which international organization? देखिए जब बात हो रही है इट हैज़ बीन एज अ कोच ऑफ डिजिटल इनोवेशन, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होना चाहिए. ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होना चाहिए, बिल्कुल सही है. What is the name of the dedicated livestock data stack for enabling the field workers to upload important information related to animal transaction like vaccination, artificial insemination, fresh animal registration? Bharat Pashudhan. Bharat Pashudhan is the answer. With which specialized armed force has National Commission for Women signed and memorandum of understanding for combating human trafficking? तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है? दिस इज रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. With which media company has Indian Council of Agriculture Research has signed a memorandum of understanding for the dissemination promotion of ICAS initiative for the growth of Indian agriculture and farmers welfare? तो कृषि जागरण
आईकार ने किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है? कृषि जागरण के साथ, फॉर द प्रमोशन ऑफ आईकार्स इनिशिएटिव। Which PSU under Ministry of Power has been recently conferred with the Mini Ratna Category 1? तो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 किसको मिला है? ग्रेट इंडिया। उसके बाद आता है विद विच कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम विद एन एम टू डिलीवर अ न्यू टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स। ओके, विद विच आईकार ने किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है? टू डिलीवर न्यू टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स। धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ आईकार ने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ आईकार ने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू डिलीवर न्यू टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स। Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, along with which ministry, has recently released a technical report on revolutionizing agriculture, the digital transformation of farming. तो revolutionizing agriculture, Ministry of Agriculture obviously होगा ही होगा, along with which ministry? Okay, for revolutionizing the agriculture, the digital transformation of farming. So this is मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस होना चाहिए। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, सॉरी रिपोर्ट जनरेट करी है विच इज रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर। रिवोल्यूशनिंग एग्रीकल्चर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। Which country recently hosted the third summit for the democracy under theme democracy for future generations? तो साउथ कोरिया ने इसको रिसेंटली होस्ट किया है। South Korea recently hosted the third summit for democracy under theme democracy for future generations. Which ministry or ministries are organizing the international strategic engagement program which is INSTEP? तो INSTEP में आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है विच इज ANC। फिर आपके पास आता है आईकार कृषि विज्ञान केंद्र आर सेलिब्रेटिंग देयर गोल्डन जुबली ईयर इन 2024 वेयर वाज द फर्स्ट KVK was established by the आईकार। तो आईकार देखो फर्स्ट KVK विच इज कृषि विज्ञान केंद्र 21 मार्च 1974 को पहला कृषि विज्ञान केंद्र आपका एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 21 मार्च 1974, 1974, 21 मार्च 1974 में पहला आपका कृषि विज्ञान केंद्र एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ हुआ था? वो हुआ था पुडुचेरी में। With which organization has Nuclear Power Corporation of India NPCIL signed a memorandum of understanding to raise awareness on peaceful use of nuclear power through various programs pan India? तो NPCIL ने किसके साथ लॉन्च किया? नेशनल कैडेट कॉर्प्स के साथ यानी NCC। Which country has recently conferred its civilian award Order of the Druk Gyalpo? ये कहाँ का है? PM प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, जो कि इनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो कौन सी कंट्री है? वो है आपकी प्यारी भूटान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फाइनलाइज्ड इट्स बोरोइंग प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ द फिजिकल ईयर 2024-25 फॉर इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एमिंग टू मीट इट्स फिजिकल नीड्स व्हाइल इंश्योरिंग मार्केट स्टेबिलिटी। आउट ऑफ द ग्रॉस मार्केट बोरोइंग ऑफ 14.13 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड फॉर फिजिकल ईयर 2024-25 इन द यूनियन बजट। देखो 14.13 लाख करोड़ इनको टोटल लेना है। टोटल इनकी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितनी है? 14.13 यानी 14.13 लाख करोड़ इनकी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है। अब उसमें से यानी कि लमसम 53% जो कि आपका होगा 7 करोड़ लगभग यानी 7.5 लाख करोड़। तो यानी कि 7.5 लाख करोड़ जो है ये बोरो करेंगे कहाँ से? थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज से। डेटेड सिक्योरिटीज से 7.5 लाख करोड़ ये लोग बोरो करेंगे। टोटल इनको बोरो करना है 14.13, उसमें से 7.5 ये लोग करेंगे थ्रू सिक्योरिटीज। पोर्शन ऑफ दिस बोरोइंग दैट इज विल बी रेज थ्रू द इश्यूएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए कितना कहाँ से रेज करेंगे? 12,000 करोड़। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से कितना? 12,000 करोड़ विल बी रेज थ्रू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। What is the name of the network of the global laboratories? तो global laboratories का network है which is COVINET, okay, COVID network. Which country along with International Atomic Energy Agency hosted the first nuclear energy summit? Which country along with IAEA hosted the first nuclear energy summit 2024? तो this is आपका कौन होगा? ये आपका है बेल्जियम। ओके हाँ, बेल्जियम में ब्रसल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। तो बेल्जियम
is the country along with IAEA hosted the first nuclear energy summit 2024। तो फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट से जब भी याद आए तो आपको बेल्जियम याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट से जब भी कुछ बात आए तो IAEA और बेल्जियम आपको याद रखना है। 1MYAC, which is 1 Million Youth Action Challenge, is promoted by the UN Climate Change Learning Partnership. It aims to encourage youth जो कि 10 से 30 साल के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने साल की उम्र है उनकी, 10 से 30 साल, to take concrete actions for a more sustainable future. It works to promote 4 sustainable development goals which SDG is not promoted by it. Okay, तो देखिए SDG 6 है, SDG 6 है, SDG 12 भी है, SDG 13 भी है, SDG 14 भी है, SDG 10 नहीं है, ठीक है, हमें याद रखना है। SDG 13 जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड बात करता है। SDG 6 देखो, SDG 12 जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्शन से बात करता है, ठीक है, और 15 जो है वो लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है। SDG 6 किसके बारे में बात करता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा SDG 6 किससे रिलेटेड है, मेरे को भी मिस स्लिप हो रहा है, अदरवाइज आपको ये सब ध्यान रखना है। 6, 12, 13, 15 आपको याद रखना है। Ministry of Rural Development has notified new wage rates for unskilled manual workers under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Identify the incorrect statement. Goa has witnessed the highest hike of 10.56%. बिल्कुल बात ठीक है। गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैव सीन द सिग्निफिकेंट हाइक 10% से ऊपर। तो गोवा, कर्नाटका, GCAT, तो GCAT से हमें याद रखना है, बिल्कुल बात ठीक है। बिहार, झारखंड हैव रिकॉर्डेड द लोएस्ट रेट, नो, इट्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन लोगों ने सबसे लोअर रेस देखा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये बात आपका गलत हो गया। हरियाणा है था मंडे का वेट 374 पर डे, बिल्कुल बात ठीक है। अरुणाचल और नागालैंड का सबसे कम है 234 पर डे। ओके, तो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इसमें हरियाणा का विच इज 374 एंड लोएस्ट इज फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड 234। Which of the following statements are incorrect about Food Waste Index report 2024 released ahead of the International Day of Zero Waste? It was released by UN Food and Agriculture Organization and RAP, which is Waste and Resources Action Program. तो हमको याद रखना है कि it was released by UN FAO and RAP. Globally, there is an increase in per capita household food waste from 74 kg to 79 kg. So this is right. Sri Lanka had the highest per capita household food waste. No, this is Maldives. मालदीव्स के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा हाउसहोल्ड फूड वेस्ट है। इंडियाज एनुअल पर कैपिटा फूड वेस्ट एट द हाउसहोल्ड लेवल वाज डिक्रीज्ड। नो, इंडिया का भी इंक्रीज हुआ है, पहले 50 था 55 हो गया है, तो इट इज़ 50 to 55, तो दिस इज रॉन्ग, नॉट 55 to 50, इट इज 50 to 55। 50% ऑफ द फूड वेस्ट अकर्ड एट द हाउसहोल्ड लेवल, 38% एट द फूड सर्विसेज एंड 12% एट द रिटेल। नो, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, 60% है हाउसहोल्ड लेवल पर, ठीक है। उसके बाद 28% है आपका सर्विसेज में और 12% है आपका रिटेल में। 60, 28, 12 है आपका, तो ये भी आप गलत होगा। 3, 4, 5 वुड बी द आंसर इन दिस केस। Which state has started telecom facilitation center aimed to support the telecom sector's growth by assisting various stakeholders in navigating regulatory process and hand-holding for various schemes for the department and fostering innovation? Which state has started telecom facilitation center aimed to support the telecom sector's growth by assisting various stakeholders in navigating regulatory process and hand-holding for various schemes of the department of fostering innovation? तो कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है टेलीकॉम फैसिलिटेशन सेंटर? मेरे हिसाब से मैं आई विल गो विद गुजरात। ओके, गुजरात इज द राइट आंसर। Telecom Regulatory Authority of India has recently released recommendation on usage of eSIM. eSIM क्या है? eSIM is embedded SIM. In the current year, government has directed National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India and NCCF to initiate procurement of कितना 5 लाख टन ऑफ अनियन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कितना आदेश दिया है नाफेड और NCCF को? आप 5 लाख टन आपको क्या करना है, आपको प्रोक्योर करना है।
The G20 Employment Working Group is mandated to address labor, employment, and social issues for strong, sustainable, balance, and job-rich growth for all. The second EWG meeting and the Brazilian presidency recently commenced in Brasilia. As India is a member of G20 Troika, it is co-chairing the EWG, which is the Employment Working Group, along with Brazil and तो एंड साउथ अफ्रीका। तो ट्रॉयका में कौन कौन आ जाएगा? आपका इंडिया, फिर आपका आएगा ब्राज़ील और फिर आपका आएगा साउथ अफ्रीका। दिस इज EWG ट्रॉयका, हमें ऐसे इसको याद करना है। What is the name of the portal recently launched by the Press Information Bureau for information on general election? तो वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? विच इज मीडिया फैसिलिटेशन पोर्टल। द एक्सपर्ट कमिटी ऑन डेवलपिंग द गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर as global finance and accounting hub has recently submitted its report to chairperson of IFSCA. The expert committee was constituted in pursuant to the notification issued by which ministry? The expert committee on developing GIFT IFSC as global finance and accounting hub has recently submitted its report to chairperson IFSCA. The expert committee was constituted in pursuant to the notification issued by which ministry? So the ministry in the question is Ministry of Finance. ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की वजह से ये जो इस कमेटी आपकी स्थापित हुई थी, हमें ये ध्यान रखना है। गिफ्ट IFSC से रिलेटेड कमेटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। वेयर इज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। तो ये जिनकी जो क्लोजर सेरेमनी है वो रोम में ही होगी। Which country is hosting the 4th Shanghai Cooperation Organization Startup Forum to catalyze innovation and collaboration among startups? तो कौन सी कंट्री है जिसने जो होस्ट कर रही है 4th Shanghai Cooperation Organization Startup Forum, which is India. तो India is hosting the 4th SCO Forum to catalyze innovation and collaboration among startups. तो इसी के साथ हमारे जो सारे MCQs हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको कोई कैसे भी डाउट हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को एक बार रेफर कर सकते हैं जो मैंने मार्च के महीने में बनाई हुई है। उसमें मैंने सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ MCQs डिस्कस करी हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। बाय बाय।